Good Good morning, morning, sir. student. Good morning, sir. Good morning, Good sir. morning, Vivek. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. Morning, sir. Good morning to all of you. Am I audible properly? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Very good. Good morning, sir. Good morning. Good morning, beta. Yes. Good morning, sir. Good morning to all of you. Just a minute. Okay. Thanks. Just, है ना? So, actually, there was some issue with the net speed, net connectivity, है ना? So, I was being forced to take the class through mobile app for the last class of 9th standard. So it started late, है ना? चलिए. So please inform me if there would be any issue so that we could take the class through mobile. अभी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ओम काले? No, sir. No, sir. ओम काले? No, sir. अच्छा. Okay. Okay, good. So just I am going to share the screen. Yes. Is the screen visible, beta? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Yes. Well, so dear students, in our last class, okay, we have started with the chapter Why do we need a parliament? शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And we have nearly completed this topic. ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका था, है ना? Why should people decide? ठीक है? So यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. Well, so यहाँ तक का हमने सेक्शन लगभग कंप्लीट कर लिया था, है ना? The dreams and aspiration of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchising. That is, all adult citizens of the country have the right to vote. Country के सारे adult citizens को क्या है? Right to vote. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now the next, good. The next Yes, topic sir. that we have, the next topic that we have is what people and their representatives. ठीक है? जो अब अगला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, वो हमारा कौन सा है? People and their representative. Yes. Anisha is there? Sir. हाँ, चलिए. So people and their representatives. ठीक है? Now people means the citizen of the country. People means the citizen of the country. And representative means those people which the remaining citizen of the country are electing. Okay? उन्हें हम क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे. तो यहाँ जो कहानी है, ये जो डिस्कशन है हमारा उसी बारे में, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं. So what is it? The take-off point for the democracy is the idea of consent. Now take-off point for a democracy is the idea of consent. इसका मतलब कि डेमोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से होती है? टेक ऑफ पॉइंट मतलब डेमोक्रेसी की शुरुआत कहाँ से हो रही है ना? तो द टेक ऑफ पॉइंट फॉर ए डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट. आइडिया ऑफ कंसेंट यानी डेमोक्रेसी किसके जरिए? देश के लोगों के एक्सेप्टेंस पर चलेगी.
देश के लोगों के एक्सेप्टेंस, यानी कंट्री के सिटीजन, देश के नागरिक जो चाहेंगे उसी के हिसाब से क्या होगा, कंट्री में गवर्नमेंट रन करेगी। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So the sir. idea of consent, Yes, idea of consent इस बात को कह रहा है कि इस कंट्री में क्या होगा, कौन हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, इस देश में किस प्रकार के कानून बनेंगे, इस देश का शासन कैसे चलेगा, ये सारी बातें कौन डिसाइड करेगा, सिटीजन ऑफ द कंट्री। यानी इस देश का भविष्य, इस देश में क्या हो रहा है वो किसके हिसाब से होगा, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. What is the Yes, idea sir. of consent? What is the idea of consent? Idea of consent is what? The desire, approval and participation of people. यानी idea of consent का मतलब लोगों की इच्छाएं, approval मतलब लोग इस कंट्री में क्या हो रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे, और कंट्री की गवर्नमेंट में पीपल विल पार्टिसिपेट। ठीक है? इट इज द डिसीजन ऑफ पीपल, इट इज द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। ओके, सो इट इज द डिसीजन ऑफ पीपल। ये किसका निर्णय होना चाहिए? देश के लोगों का निर्णय होगा। दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है? सो लोग यानी इस देश के लोगों ने ये डिसाइड किया कि कंट्री में क्या होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट the individual or the citizen is the most important person. Okay, तो डेमोक्रेसी में, ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, डेमोक्रेसी किस चीज पर बेस है? डेमोक्रेसी क्या बताती है कि द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट as well as other public institution need to have the trust of these citizens. यानी डेमोक्रेसी में बेसिक आइडिया, मुख्य बात डेमोक्रेसी की क्या है? तो डेमोक्रेसी में बेसिक आइडिया क्या है? इंडिविजुअल और सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। इस देश में सबसे ज्यादा महत्व डेमोक्रेसी में किसका है? पीपल ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट कौन है? Who are important in democracy? People of the country. Who are important in democracy? People of the country. People of the country. यानी कंट्री की डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका होगा? पीपल ऑफ द कंट्री। People of the country. वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन। इसका ये मतलब हुआ कि कंट्री की गवर्नमेंट या और जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, दे नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन। उन्हें इन सिटीजन्स का विश्वास जीतने की जरूरत है। अब सिटीजन्स का विश्वास जीतने की जरूरत है का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है ना, सरकार, कंट्री की गवर्नमेंट किसके विश्वास के आधार पर चलेगी? सिटीजन्स, यानी देश के लोगों का भरोसा जीतना
किसके लिए जरूरी है? गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है। अच्छा, जैसे हम एक चीज पूछते हैं, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? हु इज उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे अपनी मर्जी से आकर के और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ गया क्या कि मैं तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मेरे को बनना है? नो सर। नो सर। गुड। फिर ये बताओ बेटा कि उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर कैसे बने? हाउ डिड उद्धव ठाकरे बिकेम द चीफ मिनिस्टर? Because of people. By the vote of the people. By the vote of the people. ठीक है। If Uddhav Thackeray become the principal, Uddhav Thackeray became the chief minister. तो उद्धव ठाकरे यदि चीफ मिनिस्टर बने हैं, उद्धव ठाकरे यदि क्या बन गए? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर। बताओ उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर किसने बनाया? People of the People. Members of legislature. Good. So if the Uddhav Thackeray, if Uddhav Thackeray still remain as a chief minister, if Uddhav Thackeray still rule as a chief minister, तो उनको चीफ मिनिस्टर कौन बना करके रख रहा है? हमने बनाया ना? यस सर। हमारी मर्जी से वो चीफ मिनिस्टर है। ओके, so that is what the government as well as the other public institution need to have the trust of these citizens. ने सरकार में और बाकी की जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो किसकी मर्जी से, किसके भरोसे पर टिके हुए हैं? विवेक बारई, सरकार और बाकी के जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो किसके भरोसे पर हैं, किसके दम पर टिके हुए हैं? सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये लोग किसके भरोसे पर टिके हुए हैं? सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक ना। अब सवाल ये है कि हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? हाउ डज इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? इसका मतलब ये है कि लोग गवर्नमेंट किस तरीके से चुनते हैं। हमने बोला ना कि सरकार किसकी है? उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है, तो उद्धव ठाकरे को किसने चुना? पीपल ने, है ना? तो ये क्वेश्चन यही बता रहा है कि पीपल ऑफ द कंट्री यानी देश के लोग गवर्नमेंट किस तरीके से चुनेंगे, गवर्नमेंट किस तरीके से इलेक्ट करेंगे। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. So, how does the individual give approval to the government? देश के लोग, इंडिविजुअल मतलब देश के लोगों की बात हो रही, तो देश के लोग गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म करेंगे? So one way of doing so is through election. ठीक है? So गवर्नमेंट इलेक्ट करने का एक तरीका तो क्या है? It is through elections. Okay? So people would elect their representative to the parliament. देश के लोग क्या करते हैं? पार्लियामेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। What the people do? People would elect their representatives to the parliament. इतनी बात आई समझ में? The parliament. Yes, sir. People Yes, sir. would elect their representatives to the parliament. Yes, sir. इतनी बात आई समझ? Yes, sir. Okay, very good. Now, Sir. then one group from among these representatives forms the government. One group
among these elected representatives. ये जो elected representatives हैं, ये लोग मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? Government. गवर्नमेंट फॉर्म। यानी जब इलेक्शंस होंगे, जब क्या होते हैं? इलेक्शंस। तो जब इलेक्शंस होंगे, जब इलेक्शंस होते हैं तब, जब इलेक्शंस होते हैं तब क्या होगा? वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। The parliament which is made up of all representative together, ठीक है? और ये जो पार्लियामेंट होती है जिसमें क्या होंगे? सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। पार्लियामेंट में क्या होंगे? सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। पार्लियामेंट में क्या होंगे बेटा? रिप्रेजेंटेटिव। All the representatives were there in the parliament, ठीक है? तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये जो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करते हैं और गवर्नमेंट को गाइड भी करते हैं, ठीक? सो पार्लियामेंट क्या करेगी? इट कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट क्या करती है? इट कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। ठीक? पार्लियामेंट में क्या है? पार्लियामेंट इज व्हाट इज पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट इज मेड ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर। जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे देश के लोगों ने मिलकर के इलेक्ट किए हैं, चुने हैं, ठीक है? वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स का जब ग्रुप बनेगा, so that group of the representative is what? The parliament. यहाँ तक बात आई समझ में? यहाँ तक बात आई समझ? Good. Yes, sir. In Yes, sir. this sense, people through their chosen representative form the government and also control it. ठीक है? अब गवर्नमेंट किसने फॉर्म की? रिप्रेजेंटेटिव्स ने। गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव। परंतु रिप्रेजेंटेटिव, वेरी गुड, रिप्रेजेंटेटिव को किसने इलेक्ट किया? पीपल। ने। यानी People. हमारे बदले लोगों के बदले गवर्नमेंट बनाने का काम, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम, गवर्नमेंट को गाइड करने का काम हमारे बदले कौन कर रहे हैं? People. पीपल कर Representatives. People. रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, है ना? तो एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव किसके नौकर हुए? गवर्नमेंट। पीपल। तो पीपल। वेरी गुड। यानी एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, परंतु गवर्नमेंट कंट्रोल कौन कर रहा है? पीपल ऑफ द कंट्री। People. कंट्री। So in this sense, people through their chosen representative, इस तरीके से देश के लोग through their chosen representative, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए देश के लोग क्या करते हैं? They form the government and they also control it. यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. यस। Just wait for a minute. यस सर। Now, the above idea of representation has been an important theme in your class 6
एंड 7th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो हमारी क्लास 6 और 7 की टेक्स्ट बुक थी, उसमें भी हमने इसी तरीके से इन चीजों को क्या किया था, डिस्कस किया। ठीक है, नाउ यू आर familiar with how representatives are chosen at different level of government। ठीक है, चलिए जरा ये जो चीजें हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है, हमारे कंट्री में कितने प्रकार की गवर्नमेंट है, ये चीज आप लोगों को स्टैंडर्ड 6 और 7th में पढ़ने को मिली होगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे। वेट, अच्छा ये बताओ, जस्ट अ मिनट, हु इज हेमलता वाकले? हेमलता, यस हेमलता बेटा। ओके, विवेक बारे? Yes, sir. बेटा हेमलता वाकले इज द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास? Yes, sir. अच्छा, ओके, सो एज सून एज आई ट्राई टू टॉक हर शी मूव्ड आउट, है ना? Yes, sir. शी इज नॉट लाइव एनी मोर। बहुत बढ़िया, चलिए एहसीन, गुड मॉर्निंग बेटा। एहसीन मोबाइल, ओके ठीक है। अक्षर तिवारी, अक्षर तिवारी, Yes, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. अच्छा, the question is for you Akshar, how many types of government are there in India? इंडिया में हमारे पास कितनी प्रकार की गवर्नमेंट्स हैं? That is how many level of government we have? Sir, 2. We have 2 levels of government. Very good. Can you tell what are these 2 levels? Levels. Can you try to tell what are these 2 level of government? Sir, not Lok Sabha and sir, like that one. Yes, Lok it is Sabha and like Rajya Sabha. Yes beta, it is like that only, but you are missing 2 or 3 things। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। देखो, इंडिया में we are having basically 3 types of government, that is 3 level of government। इंडिया में हमारे पास कितनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है बेटा? 3. We have 3 level of government in India। We have 3 level of government in India। इतनी बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब सवाल ये है Yes, sir. कि what are these 3 level of government? ये 3 level of government कौन कौन सी? ठीक है, तो ये 3 level of government कौन कौन सी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, now what are these 3 level of government? Are you listening? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We are having Yes, sir. one level of government। एक जो level of government है वो कौन सा है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सुना है? Yes, sir. Do you people listen the central government? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the one level of government? Central. Central government. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सुना है? Yes, sir.
वेरी गुड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट Yes, में sir. एक चीज ये बताओ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं? Prime Minister. कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं? जल्दी बताओ। Prime Minister. Prime Minister, sir. वेरी गुड। ठीक है, Prime और Minister. वेरी गुड। यदि स्टेट गवर्नमेंट है, क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन होंगे? Chief Minister. Chief Minister. स्टेट Chief Minister. गवर्नमेंट में कौन होंगे? Who are there in state government? Chief Minister. स्टेट गवर्नमेंट में कौन होते हैं? Chief Minister. Chief Minister. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट अ मिनट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो हमारे पास दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गई। एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी क्या हो गई? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अभी वी हैव वन मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और वो एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो क्या कहलाती है? लोकल गवर्नमेंट। आपने ग्राम पंचायत सुना है? Yes, sir. Yes, sir. तो जब स्टैंडर्ड 6 में आप लोग सिविक्स पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड 6 में आप लोगों को ग्राम पंचायत के 2-3 चैप्टर थे ना? Yes, sir. Yes, sir. ग्राम सभा की, है ना, ग्राम सभा के बारे में था और बाकी के अन्य चीजों के बारे में भी था ना? यहाँ तक बात आई Yes, समझ sir. Yes, sir. में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So that is what the representatives are chosen at different level of government. इस तरीके से अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या इलेक्ट किए जाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, Now, sir. come to the point. So now next section that we have is what? The role of the parliament, है ना? ये तो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको हम बाद में करेंगे। These are the figures only. So the next section जो हमारा थ्योरेटिकल समझने का है वो क्या लिखा हुआ है? The role of the parliament. इतनी बात आई समझ में? चलो, now the role of the parliament, अब इसका मतलब क्या है? So in this topic, the role of the parliament, what we are going to discuss? We will discuss that what work or which work is done by the parliament. इस सेक्शन में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे? इस सेक्शन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि पार्लियामेंट में क्या क्या काम होते हैं, पार्लियामेंट क्या काम करती है, व्हाट आर द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए बिफोर कमिंग टू दिस पॉइंट, है ना, अभी इस सेक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। यस, तन्मय गोखरे, आर यू रेडी? Yes, sir. वेरी गुड। भार्गव अवंडे, आर यू रेडी?
चलिए, तेजस्विनी, Yes, sir. चिन्मय बोधाने, Yes, sir. वेरी गुड। चलो चिन्मय, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ना? अच्छा, आपके घर में मदर और फादर दोनों हैं? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द रोल ऑफ योर फादर इन द फैमिली? Father is doing work and bringing money to the home. Very good. Father is doing work and father earns income, that is money, to meet the expenses for the family. Okay, so what is the role of the father in this case? The role of the father is to earn money. पापा का रोल क्या है फैमिली में? अर्न मनी। वेरी गुड। अच्छा मान लो, क्या सिर्फ एक ही रोल है या और भी रोल है? Your father has only one role in the family or there may be many roles? Sir, many roles. Many roles. तो तुमने तो एक ही रोल बताया, बाकी के रोल कौन कौन से हैं? जल्दी बताओ। What are the remaining roles? चलो ठीक है, खरीदी करना है ना, यानी अपार्ट फ्रॉम अर्निंग इनकम योर फादर also assist you to purchase the different things from the market. चलिए, तन्मय गोखरे। Sir. तन्मय, Yes, sir. can you tell any other role of the father in the family? Tanmay, can you tell any other role of father or parent in the family? ये किसी का माइक ऑन है भैया? शिवराज माइक बंद करो। शिवराज, चलिए। यस, तन्मय गोखरे। Sir, father works for the family. Father the family for different work. अरे इतना तो सब उसने बता दिया है। चलो ठीक है, ओके। अद्वैता द्विवेदी, व्हाट इज द रोल ऑफ योर फादर इन फैमिली? पापा का और क्या रोल है? Taking care of children, sir. टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, बहुत अच्छा। हमारी देखभाल वगैरह भी कौन करते हैं? Papa. पापा करते हैं ना? Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए, ओके, सो गॉट द एंटायर थिंग्स, है ना? चलो नेक्स्ट वाला, ठीक है, इट्स ओके। सो अच्छा, अद्वैता द्विवेदी। Sir. वेरी गुड। मम्मी का रोल क्या है फैमिली में? Sir, cooking food and doing households and taking care of family. It means that when there are the people in a family, है ना, जब फैमिली में कुछ लोग हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो what happens? Each one has to play some role. तो रोल का मतलब क्या है कि उस पूरे सिस्टम में वो लोग कर क्या रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है? तो दैट इज व्हाट द रोल ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन इन ए फैमिली। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. गुड। तो यही चीज हम, यही बात हम कहां पर
यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का काम क्या है। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let us begin with this topic. So, created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. यानी 1947 में पार्लियामेंट बनने के बाद, 1947 में पार्लियामेंट बनने के बाद, ठीक है, द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो इस बात को शो करती है कि देश के लोगों का किसमें विश्वास बना हुआ है, डेमोक्रेसी में विश्वास है। यानी हम 1947 से लेकर अभी तक, है ना, एज ऑन टुडे 2021, ठीक, हिंदुस्तान को आजाद हुए लगभग 75 इयर्स के आसपास या उससे ज्यादा हो गए। इतने सालों में हम लगातार डेमोक्रेटिक वे में क्या कर रहे हैं, अपने कंट्री को रन कर रहे हैं। तो हमारा यानी हिंदुस्तान के लोगों का डेमोक्रेसी में जो विश्वास है, इंडिया के लोगों का डेमोक्रेसी में जो विश्वास है, वो किसके जरिए शो हो रहा है? इट इज बीइंग शोन थ्रू द इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। नाउ दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, है ना। हमारे देश के लोग डेमोक्रेसी को बिलीव करते हैं। हमारे कंट्री में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम रन कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना बेटा। तो ये सब किसके जरिए पॉसिबल हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमारे देश के लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए हम क्या करते हैं? कंट्री की गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है। हमारे कंट्री की गवर्नमेंट हम किसके जरिए? कंसेंट के जरिए, देश के लोगों के वोट से क्या चुनी जाती है? कंट्री की गवर्नमेंट चुनी जाती है, ठीक। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good beta. So it is Yes, sir. 9:31. It is 9:31. The next class is about to begin in this room. So we are binding up the session. Okay, here only. So thank you, sir. students. Thank you, sir. Thank you, sir.